Hi there, this is Wisdom Lantern Tarot. I'm Madhura, your energy reader. Today's topic is, as I have promised, it's very rare and unusual questions will be channeled. So, the topic is, who will be the unseen guest in your love marriage? So, who are in a kind of commitment, engagement, or like recently going to marry, for them this reading will be resonating. Even the singles can see. So it's basically something like everybody can see it actually. So we are covering this topic from spiritual details. Okay, so the unseen guest is the spirit, different spirits who are blessing, who are protecting your marriage, whatever. So let's start with today's questions. 5 questions will be channeled very importantly. The first one is the honored elder. So basically what I'm going to channel here is which ancestor or spirit is actively blessing this love marriage. Okay, the honored elder spirit. 2 things will be channeled: the main supportive spirit energy and that spirit's gift for both of you, like both the spouses. Okay, now for that I'm going to use this empowering messages card as well as the main supportive energy with fine horn spirit. Let's do it. This spirit could be your deceased ancestor spirit, so take whatever resonates and leave the rest. Let's shuffle. What is the main supportive energy for your love marriage? Spirit, give me one card. And supportive spirit in your love marriage. Okay, hold on a bit. Main support. Okay, you would not believe, this is what I felt. This is what I felt before even starting shuffling. Love, that which is found and that which is finding are one. जो स्पिरिट आपकी लव मैरिज को ब्लेस करने वाले वो लव स्पिरिट है. ओके, बेसिकली दिस इज अ लव स्पिरिट. आई डोंट नो इफ यू आर फाइंडिंग somebody's face resonating with this particular spirit, but this is the energy जो आपको मिल गई है और जो आप ढूंढ रहे हो वो एक ही चीज़ है, लव. सबसे बढ़िया एनर्जी ये है प्रेम, जिसके द्वारा आपके लव मैरिज ब्लेस्ड हो रही है. इसके मतलब एक एनर्जी अलाइनमेंट है. ओके, सो आई नीड नॉट टू डिस्कस अबाउट एनीथिंग अबाउट दिस. यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, राइट? नाउ टेक दिस वन. ओ माय गॉड, ट्रांसेंडेंस. It is not personal, drama is unnecessary. See, अगर आपने ये मैरिज के पहले बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स डील किया है जहाँ पर लव नाम की कोई चीज़ नहीं मिली, इसके मतलब है जो स्पिरिट आपकी मैरिज को ब्लेस करने वाली थी वो स्पिरिट की कोई सपोर्ट नहीं थी. Because of there was one thing lacking, the main thing lacking, that is the love. So now it is coming up because you have transformed, you have transcended a lot. बहुत सारी चीज़ जो हुई है वो शायद आपको बहुत, I mean to say emotionally, I mean to say socially, I mean to say intellectually or any other way, made your face, made your essence ugly. The way you look, see how she is ugly in that sense, but that shows clearly that what the spirit dealt with or what you have dealt with and you still carried on for your best purpose. So that means आपने लव को छोड़ा नहीं है. ये ऑनर्ड एल्डर वो है जो हो सकता है कोई डिसीज्ड लव पर्सन जिसके साथ आपकी प्यार की रिश्ता बहुत गहरी थी और वही सोल आपको ब्लेस कर रहा है इस मैरिज में. तो इट्स लाइक it's very interconnected. It's like you know that this is what you have transformed. You dealt, you know the story. You can tell something about whatever you have dealt with.
So honor your journey, honor your lessons, honor your karma, honor your purpose, because you are meant to find this. That's why you are prepared. You've gone through this type of phase. Okay, this is what your supporting honored elder now will be saying कि ये जो spirit है, ये spirit आप दोनों को exactly कौन सा गिफ्ट देना चाहते हैं. वो गिफ्ट ऑब्वियसली स्पिरिचुअल गिफ्ट है, पर जो आपकी लव मैरिज को ब्लेस करने वाली है. तो चलिए हम देख लेते हैं उसको. पहला कार्ड हम आपके लिए लेंगे, दूसरे कार्ड आपके स्पाउस के लिए. ठीक है. Which gift you are being blessed with by this love spirit? So beautiful start actually. Okay, with spirit your spouse is being blessed. Thank you spirit. Once again you will not believe how much it is resonating. Rise above the noise. ये bottom deck energy है, higher ground, direct connection. Try not to take things personally. Sometimes we are just actors in other people's dramas. Avoid getting sucked into negativity. देखिए, अगर आप stuck अभी भी हो मेंटली, या फिर हो चुके थे और अभी मूव ऑन कर चुके हो, जो भी है, एक चीज़ ध्यान में रखिए. किसी की ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगी जुड़ते वक्त आपने शायद कुछ रोल उनके ज़िंदगी में प्ले किया होगा जिसके साथ आप कनेक्टेड नहीं हो अभी, या फिर उसने आपकी ज़िंदगी में प्ले किया होगा. दिस इज़ जस्ट द एक्टर. शेक्सपियर सेड नो, दिस इज़ द अर्थ वेयर वी प्ले द रोल्स. अर्थ इज़ दैट ड्रामा ग्राउंड. ओके, सो समथिंग लाइक दैट. यू जस्ट प्लेड अ रोल. Nothing happened, to you. It's like happened for you. Something like that. तो वही चीज़ रिपीट हो रहा है. देखिए, इट इज़ नॉट पर्सनल. ड्रामा इज़ अननेसेसरी. सो वो चीज़ को हटा दीजिए दिमाग से, दिल से, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस पर्सन के साथ या फिर जिन सारे इंसान के साथ आपके जर्नी रहा होगा, उनको कुछ सीखना था आपसे, बहुत तगड़ा कुछ सीखना था. आई मीन टू से दे नेवर लर्नड इट एंड दे लर्न by your this transcendence power, because somehow they, मतलब एक टक्कर हुआ, एक टकरा गए लाइफ के, एक आमना सामना हुआ ये सारे इंसान के साथ. आप बदल गए. आपकी दो तरीके की इंसान होती है. एक बहुत सारी चीज़ झेलने के बाद ग्रो करना जानते हैं, खुद को सेल्फ केयर करते, ग्रो करते, वो बहुत मैच्योर्ड है. मेनी इमैच्योर्ड एनर्जी यू हैव डेल्ट विद हु इवन आफ्टर दैट डिड नॉट ग्रो. दे फेल्ट लाइक जेलसी, दे फेल्ट लाइक वॉचिंग ओवर यू, दे फेल्ट लाइक फेकिंग, दे फेल्ट लाइक being envious. So these are immatured energy. Matured person who are emotionally intelligent will not do so. So this is your kind of bottom deck energy. I'm keeping it over here as it is a bottom deck energy, and let's do this. Take it here, and oh my god, is it you card? Actually I didn't know. Your card is your gifted partnership. Oh my god, love spirit is actually blessing you with this grow good relationships. मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपके स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप ग्रो होने वाला है. आप एक किंडर्ड स्पिरिट को मिलने वाले हो, किंडर्ड ग्रुप को मिलने वाले हो, जिसको हम सोल ग्रुप कहते हैं. ओके, लेट्स रीड द मैसेज. पार्टनर्स सपोर्ट वन अनदर, को क्रिएट एंड प्रॉब्लम सॉल्व टुगेदर. फॉर्जिंग पॉजिटिव पार्टनरशिप्स इज अ पोटेंट वे टू अनब्लॉक पर्सनल ग्रोथ. सेम थिंग. ऐसा एक इंसान के साथ जुड़ना बाकी है जो लव से आपको ग्रो करना सिखाएगी. हर एक चीज़ जो आप करोगे, बिजनेस, फैमिली, ट्रैवलिंग, rearing child, bearing child, whatever it is, the main mantra will be love. और वही है एक हथियार इस पूरे दुनिया में आपके लिए, जो बहुत सारे इंसान की जिंदगी भी बदल के रखेगी. आपके तो ज़रूर बदलेंगे, और वो ऐसा बदलाव होगी जो ये पूरे दुनिया देखते हुए हैरान रह जाएंगे. देखिए, मैं कोई पॉपुलर स्टार फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ जिसको टीवी पे देखते हुए लोग हैरान रह जाते हैं, जिसके BMW कार या फिर लंबोर्गिनी देख के लोग पागल हो जाते. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इवन आफ्टर दैट दे आर नॉट हैप्पी इन मेनी वेज. बट लुकिंग एट यू पीपल,
all those people will feel like they are one of a kind, and they will try to understand what is the mantra. This is nothing but love. This is the mantra only. Okay, now this is your card, this is yours, and now this is your person's gift. Acceptance, all is as it should be. Great and great. Try to see situations through the eyes of your best self. You have the wisdom and the will to refrain from judgment. So send blessing instead. Oh my God, oh my God. उनके स्पिरिट जो उनको गिफ्ट, जिस गिफ्ट से उनको ब्लेस कर रहा है आपके स्पाउस से, वो है एक्सेप्टेंस. आप जिस तरीके की लव आगे बढ़ाते हुए कंफर्टेबल हो वो एक्सेप्ट करेंगे. आप जैसे इंसान हो वो उसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे. आपको अगर कुछ चीज़ों में पसंद नहीं है, नो कहना है, रिजेक्ट करना है, वो एक्सेप्ट करेंगे. दे विल रेस्पेक्ट योर बाउंड्री. सो व्हाट एल्स, दिस इज द ग्रोथ. व्हाई दिस ग्रोथ इज हैपनिंग इन पार्टनरशिप? बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग द वे यू आर, and that was not possible with anybody. So these two are basically kind of something which is joining with empathy. So something like, I don't know, this person, मतलब ऐसा एक एक्सचेंज हो रहा है गिफ्ट का, जहाँ पर आप जो दे रहे हो उनको, देखिए जो दोगे आप उसको डोमिनेट करना अलग बात है, मैनिपुलेट करना अलग बात है, पर एज इट इज़ एक्सेप्ट करना वो एक अलग गिफ्ट होता है. बहुत सारे इंसान को रिसेप्टिव पावर ही नहीं है. उसके पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, मुझे इतना लग रहा है. पर्सपेक्टिव टेकर, एक चीज़ों को बिना जज किए हुए बहुत सारे तरीके से देखेंगे. अगर आप चिढ़ भी जाते हो किस वजह से, फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन इज़ लाइक, एक मिनट रुको ज़रा, क्या हुआ है इसको, ये सुबह से तो ठीक थी, something like that. They will not make a comment just by what other people are thinking, other people are telling, other people have told any kind of bullshit, lies or whatever. So this is what, हमेशा ये स्पिरिट का साया बने हुए रहेंगे आप दोनों के ऊपर. उनके ऊपर एक्सेप्टेंस की पावर रहेंगे स्पिरिट के, आपके ऊपर पार्टनरशिप के. आप बहुत अच्छा पार्टनर बनोगे. पार्टनरशिप के मतलब सिर्फ दो स्पाउस नहीं होते, वो हर एक तरीके की पार्टनर की बात करते. फ्रेंडशिप बहुत तगड़ा रहेगी. ये कार्ड शायद एक्स्ट्रा आई थे, आई डोंट नो. एक्सप्लोरेशन, मुझे लग रहा है दोनों मिलके बहुत खूब सारे जगह एक्सप्लोर करोगे आप. ब्रेवली ओपन एंड कनेक्ट. इट इज़ टाइम टू गेट टू नो अदर्स बेटर, लर्न समथिंग न्यू अबाउट द पीपल in your life and allow them to learn something new about you, being vulnerable basically. So ये कार्ड एक कंफर्मेशन मैसेज की तरह आया है. अगर कोई मेरे विजिटर में से आज ये रीडिंग देख रहे हो जहाँ पर आप सिंगल्स हो या फिर आप चिंता कर रहे हो कि यू आर गोइंग टू सेटल डाउन और नॉट, then this is the message for you कि yes, this is a high time to find out somebody and trying to be open and just let people know that you exist somewhere. Explore करो, ठीक है. This is your card. So now I will be moving towards the second question of the reading. Okay? अभी मैं शिमरा से चैनल करूँगी. टैरो डेक है. Second question, the gatekeeper. That means who is actually protecting your union from any enemy, any karmic lessons. ये जो लव मैरिज है, इस लव मैरिज के ऊपर कौन सा स्पिरिट का प्रोटेक्शन बने हुए है वो हम देखेंगे. चलिए हम चैनल करते हैं. सिर्फ शिमेरा से हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को. हु इज प्रोटेक्टिंग योर यूनियन? विच स्पिरिट इज प्रोटेक्टिंग दिस लव मैरिज? ओके, फ्रॉम और टेस्टिंग दैट इफ यू आर रेडी. Okay, without wound, without any baggages, you are ready for this union or not. Okay, everything will be covered up with this. Who is okay? What is this bottom deck? Queen of Pentacles. Great. So the spirit is telling highly just now, you are ready, my dear. Queen of Pentacles is a highly independent energy. Even I see some kind of love. They see the thing of life, the domains of life from a very independent and non-judgmental perspective, where they're not biased or delusional by others' opinion. Okay, this is what the spirit. Now we'll be seeing this card. Oh my God, so amazing.
Hierophant. It's basically a spiritual card. It's basically a major arcana. So it's a spirit of wise, old wise wisdom. You are with the wisdom lantern tarot. So my visitors, it is very high time to know that कि हायरोफेंट जो मैरिज को ब्लेस करता है वही स्पिरिट आपकी लव मैरिज को ब्लेस करेंगे। इसके मतलब ये जो मैरिज होगी, ये जो पार्टनर को फाइंड करने वाले हो, वो जो भी है, अगर फाइंड कर चुके हो अलग बात है, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो, एंगेज्ड हो, वो अलग बात है, अगर आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है वो भी अलग बात है। जो भी सिचुएशन आपकी है उसके हिसाब से रेजोनेट कीजिए। ये जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट ने जिंदगी का बहुत कई तरीके की एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छे एक्सपीरियंस हो या फिर हादसा, ये सारे के सारे टेस्ट इसने किया है, इसके स्वाद उनको पता है। तो ये विजडम लेके वो आगे बढ़ रहा है, तो उसको पता है कौन से इंसान वो चूज कर रहे। कई माइल दूर से इसको स्मेल से पता लगता है कि हु इज दैट पर्सन, व्हाट इज देयर मोटिव। सो दैट स्पेसिफिक स्पिरिट इज ब्लेसिंग यू विद ओल्डर विजडम दैट यू ऑलरेडी हैव। एडिड टू दैट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऑलरेडी ओल्ड सोल हो, आपकी नया जन्म हुआ है इस लाइफ टाइम में, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। तो इसको भी ध्यान में रखिए क्योंकि ये हायरोफेंट कार्ड इटसेल्फ इज अ मैरिज कार्ड। बहुत सारे लोग इस मैरिज के खिलाफ रहेंगे। आपके फैमिली मेंबर को नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, दोनों की फैमिली मेंबर, इन दोनों की एक रिश्ता बनेगी। इससे मैरिज सिर्फ एक दो इंसान की रिश्ता नहीं है, फैमिली का एक बॉन्डिंग होती है। ओके, दो फैमिली का भी मैरिज होती है। सो द मेन थिंग इज, किसी भी हालत में कोई भी फोर्स, नेगेटिव फोर्स लाइक cannot destroy this union because it's like highly protected. आपको स्पिरिट के पावर के ऊपर कितना विश्वास है वो मुझे पता नहीं है, पर विश्वास आपको तब हो जाएगी जब एक इनविजिबल फोर्स आपको हेल्प करने वाली है, आपको बराबर ब्लेस करेंगे। ये ब्लेसिंग आपके ऊपर बने हुए है, इसी वजह से बहुत सारे रिश्ता तोड़ गए हैं क्योंकि उसमें लव नाम की चीज़ थी ही नहीं। There was no honored elder as the love spirit. Okay, so make sure. I don't know who you are, man or woman, joining my today's reading. I wish you all the best with this. This can be a traditional reading. ऐसा हो सकता है कि बहुत कम लोग प्रेजेंट रहे, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। बहुत एक पीसफुल जगह पे, आपके ठीक सपनों की तरह, जैसे आप सजावट चाहते थे वेडिंग पे वैसे रख के वेडिंग हो जाए, बहुत कम लोग मिलके, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ओके, बेसिकली यू विल बी फुलफिल्ड इनफ, वर्थ टू वेट। ओके, oh my god, what is that? From the temple sound it is confirmed. The thing is, बहुत खुश रहोगे आप, बहुत चिंता मुक्त रहोगे और ये सपनों की वेडिंग रहेगी। ऐसा ही कुछ आपने सोचा था और ऐसा ही कुछ होने वाला है। चाहे जो भी हो जाए, actually nothing can hinder this one. Somebody who is a bit older than you, a bit age gap is there, or somebody who is probably thinking of you, not your ex, okay, not your past if you have it. Somebody who is probably thinking of you very highly, they honor you. This person may ask you out also. For singles, this is the message, okay? अगर आपके लीगल वेडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, आप सिर्फ एक सोशल वेडिंग की वेट कर रहे हो, तो yes, this is how you are gonna spend your time. Let's now move towards our third question for the reading. Now I am going to channel about the unspoken vow. That means ये मैरिज के द्वारा कौन सा पास्ट लाइफ सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों में
एक्टिवेटेड होने वाले हैं। ओके, कौन सा पास्ट लाइफ का मिशन आप इस जन्म में पूरा करोगे? बहुत कीमती वक्त पे आ चुके हैं हम इसको देखने के लिए। मैं पहले पास्ट लाइफ ऑरेकल से चैनल करूँगी, उसके बाद लाइट से हम एक कार्ड चुनेंगे। सो व्हाट पास्ट लाइफ कनेक्शन और सोल कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग एक्टिवेटेड बाय दिस लव मैरिज? ओके, Spirit. Okay, hold on. बढ़िया. Unrequited love. You had a painful experience with your love partner in past life, which is negatively affecting your current life. You might distrust your lover's intention. Oh my God. देखिए, दो तरीके की चीज़ मुझे लग रहा है। एक ऐसा है कि बहुत सारे अनरिक्वायर्ड लव सिचुएशन से आप गुजर के आ चुके हो पास्ट लाइफ में, जहाँ पर आपने आपके तरफ से बहुत सारी चीज़ ऑफ़र किया है, पर जिसको ऑफ़र किया है वो सारे लवर्स, ना हम लवर्स कह रहे हैं बट सो कॉल्ड लवर्स, दे नेवर रिटर्न इट बैक टू यू। ओके, उससे कहीं ना ज़्यादा जो मुझे पॉसिबिलिटीज़ लग रहा है कि ऐसा हो सकता है पास्ट लाइफ में जो आज मिल रहे हैं आपसे, वो इंसान ने एक पैटर्न रिपीट किया था। शायद ही इंसान की लाइफ में ऐसा कुछ लेसन लिखा होता कि ये लव के मामले में कमिटमेंट फोबिक थे, या फिर उसने कभी इसको लेकर सोचा ही नहीं है। ओके, सो दैट पर्टिकुलर लव यू फाउंड इन योर past life and you poured your love, but what happened, that partner did not kind of reciprocate it back to you. So when you passed away from that lifetime and that person also passed away, I feel like you are the one who passed away by offering this love. One time this person felt like they did not do well. They felt a guilt of what they did is not what you deserve. So that particular unfinished business is totally activated from their side, which is going to be fulfilled in this lifetime. शायद ये लवर्स को आप जानते हो, क्योंकि आपको एक डिस्ट्रस्ट या फिर मिसट्रस्ट इशू है, जिस वजह से आपकी ऑनर्ड एल्डर स्पिरिट ऑलरेडी लव स्पिरिट आया है, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ये विश्वास करने के लिए सपोर्ट कर रहा है। इवन ट्रांसेंडेंस इज योर स्पिरिट, डोंट फॉरगेट कि आप इस इंसान को, इस मैरिज को ब्लाइंड फोल्डेड होके भी विश्वास कर सकते हो। ये बहुत सेफ है। This person will make every effort this lifetime to make you understand their intention is so pure, innocent and clear without any kind of manipulation behind it. शायद ये इंसान ने पास्ट लाइफ में आपके लिए कुछ जगह नहीं रखा था, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ में पढ़ना ही नहीं था। That's very simple. I don't feel like this person was kind of who was a playboy, play girl type of energy. Okay, so this is your card basically. This is quite rare to come out because most of the time in past life it never comes out. Okay, healing is something. Now I'm going to use this light seer tarot. चलिए हम देख लेते हैं, और एक कार्ड लेके हम इस टैरो से भी थोड़ी सी क्लैरिफाई करेंगे। चलिए हम पास्ट लाइफ ऑरेकल की अनरिक्वायर्ड लव को क्लैरिफाई करते कि कौन सी पास्ट लाइफ लेसन एक्टिवेटेड होने वाले हैं इस मैरिज के द्वारा। ओह माय गॉड, ओके, King of Swords, that's confirming this loyalty. This person will offer you a loyal love. Okay, bottom deck energy. हाय मैं मर ही जावा जो तुझको ना पावा। क्यों मैं गा रही हूँ? क्योंकि बड़ा अजीब लग रहा है। एस ऑफ कप्स एंड जजमेंट। स्पिरिट हैज ब्लोन अप द ट्रम्पेट। कोई कॉल कर रहा है दूसरे जन्म से कि I feel guilt, I didn't return it back to you, why I feel so connected with you, I can't let you go off. ये जजमेंट है इस लाइफ टाइम की जो ये इंसान आपको ऑफर करने वाले हैं। मुझे लगता है ये इंसान कुछ तरीके की कमिटमेंट फोबिक थे। मुझे फिर से बोल रही हूँ, जजमेंट कार्ड ये सारे कार्ड से नहीं, ये एकदम नया लव है आप जिंदगी में, और वही मतलब जो लव उसने एक्सेप्ट नहीं कर पाए वो एक्सेप्टेंस इस लाइफ टाइम में आ रही है।
इसकी ज़िंदगी में कभी भी कोई इंसान ठहरे नहीं है। अगर आए गए हैं वो अलग बात है, पर फिर भी कोई गहराई तक कोई रिश्ता पहुँचे ही नहीं है जो आपके साथ पहुँचने वाले हैं। और ये जो देख रहे हैं ना, एक किसी का सोल ऐसे आत्मा ऐसे निकल रही है, this is your soul which is who is calling that person out without your own conscious knowing, and that is calling from the past, and that this must happen here. otherwise मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों इंसान सफ़र करते रह जाएंगे इमोशनली सोल, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो हो सकते हो या फिर ये इंसान जो आपके स्पाउस है, दोनों ही सेटल डाउन नहीं करना चाहते, कर नहीं पा रहे। कुछ वजह है इसकी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे किसी को पसंद नहीं आ रहा है, मुझे दीज आर द ट्राइफलिंग मैटर्स, ये सरफेस लेवल में है कि किसी का अपीयरेंस मुझे पसंद नहीं आया, किसी का जॉब मुझे पसंद नहीं आया, दे आर लाइक समथिंग लाइक दैट, बट इट इज़ नॉट द कॉज इज यू आर नॉट फीलिंग एट ऑल कनेक्टेड, यू आर fearful to settle down, you have only one with whom you are going to, and for that reason only most of the partnerships or karmic relationship didn't work out. Okay, so let me move with this to the fourth question now. अभी जो क्वेश्चन को हम चैनल करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान लगा के सुनिए। इट इज़ अबाउट फैमिली पैटर्न। कौन सा ब्लेसिंग या फिर कार्मिक बैगेजेस आप ये ऑल्टर तक कैरी कर रहे हो? ओके, व्हाट आर द बैगेजेस और ब्लेसिंग एक्चुअली you are carrying to the altar? Okay, now let me start with this Soul Symphony Oracle. I'm gonna use 3 decks total: Soul Symphony Oracle, Spirit Message deck, and what's blocking your union or something, if there is a blockage. So Spirit, give me one card about what blessing or baggages they're carrying, or some unfinished business they're carrying to the altar, whatever the family pattern. Okay, give me Spirit one card. Thank you. Okay, secrets, exposure, being judged, hiding truth. Oh, बॉटम डेक को देखती हूँ क्या है। Oh my God, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऐसा हो सकता है कि ये जो इंसान आपके साथ जुड़ने वाले हैं वो कोई एयर साइन का पर्सन हो, फ्रीडम लविंग पर्सन हो सकता है। मुझे लिब्रा और एक्वेरियस होने की चांस ज़्यादा लग रही है किसी वजह से। ठीक है, दोनों ही शायद एक ऐसा चीज़ कैरी कर रहे हो कि बहुत सारे पार्टनरशिप जो आपने झेला है या फिर देखा है, एक डिसीटफुल एनर्जी है जो बहुत सारी चीज़ छुपाते हुए है आपके साथ, और सडनली वो एक्सपोज हो गया है आपके अपने एफर्ट से, या फिर बहुत सारे इंसान ने मिलके एफर्ट बनाया, आपके सामने खुलासा हुई है। ये जो ट्रूथ सामने निकल के आ जाना दोनों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं है, जहाँ पर बार बार आपने विश्वास किया और वो सारे इंसान ने डिसीट करके गया आपको और विक्टिम रोल प्ले किया उसके बाद। इट्स लाइक, ओ माई गॉड, यू डिड दिस टू मी। इट्स जस्ट अ क्लीन चिट मैनिपुलेशन। सो you are being judged, you are being exposed in a different way, whereas the other person was keeping a secret. This is what probably this family pattern, both of you, like दोनों का ही पैटर्न में ये सारी चीज़ शायद मौजूद है। इस वजह से यही दोनों इंसान सबसे ज़्यादा नॉन जजमेंटल है, समझते हैं एक दूसरे को। किसी भी जगह पे, किसी भी इंसान की इंटरवेंशन पे ये इन दोनों इंसान की, मतलब आपकी और आपके स्पाउस की जो बीच की रिश्ता, ये कहीं हद तक किसी भी हालत में हिल नहीं जाएगी। ओके, सेकेंड ऑफ ऑल, दिस पर्सन में हैव केप्ट यू अ सीक्रेट, और यू केप्ट दैट पर्सन अ सीक्रेट इनसाइड, लविंग यू इनसाइड, क्योंकि आपको डर है अनरिक्वायर्ड लव की। तो आपने शायद अंदर ही अंदर प्यार करते रह गए, और यही सच्चाई एक्सपोज हो चुकी है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है कि एक्सपोज ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, कहीं ना कहीं इवन आई फील लाइक द सीजन, यू नो व्हाट इज दैट सीजन, आई कॉल इट September, October, okay, March, April. These are the specific timeline where the transformation or the marriage can be taken place, or something like that. Okay, if you are planning for that, or kind of union will happen. So now my next
thing will be shuffled with which block you need to remove. This is the deck I'm going to use. चलिए हम shuffle करते कौन सी ब्लॉक को दूर करना ज़रूरी है. ओह ओके. ओह oh my god, bottom deck energy. Fear of cheating. Isn't it clarified? Isn't it clarified with this? Not everyone cheats. You need to open your heart and trust your partner. ये जो पर्टिकुलर रिश्ता बन चुकी है या फिर बनेगी, जो भी है स्टेटस, इसकी मूल मंत्र है लव और ट्रस्ट, जो बहुत स्ट्रेंथ के साथ आपको गेन करना पड़ा. और वो गेन करने में आपके ऑनर्ड एल्डर जो ट्रांसेंडेंट स्पिरिट है उसने हेल्प किया या फिर हेल्प कर रही है. पर ये बात बहुत हद तक सही है कि आप इस इंसान के साथ जुड़ के रहोगे क्योंकि आपका ये पास्ट लाइफ बॉन्ड है. यू कैन नॉट एस्केप इट. दिस पर्सन इज स्क्रीमिंग आउट लाउड फॉर यू. देयर सोल इज लाइक, इस जिंदगी में लौट रही हूँ तो तुम्हारे लिए लौट रही हूँ. किसी भी हालत में मैं ये करके रहूँगी. ओके, खुद के साथ लड़ाई करके हो फिर भी मैं उतरूँगी. सीकिंग परफेक्शन. Everyone has flaws. Choose only 5 must-haves and deal breakers that matter. Great. मुझे लग रहा है आपकी स्पाउस की एनर्जी है कि अगर इसी वजह से शायद पास्ट लाइफ में अनरिक्वायर्ड लव सिचुएशन थी. इनका बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है और ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्शन. लाइक दिस थिंग्स विल बी देयर. चेकलिस्ट यह है, ऐसा नहीं होता है. Thousands of things you can seek out, but you may have 65 out of it. You may not have the others. So this person need to lower down these things. What are the priority? उन priority में से 5 ऐसा चीज़ जो डील ब्रेकर रहेगी या फिर आवश्यक रहना चाहिए ताकि उनको समझ में आए कि यही इंसान उसके लिए सही है, यही इंसान है जिसके साथ उसको जुड़ना है. Sorry for the background noise. That they need to write down. It is your blockage that needs to be removed, and I feel like you have already done this activity, that particular shadow work to the extent, and this person is still yet to complete or something like that, but this person is here to support. ऐसा मुझे लग रहा है कि दोनों इंसान ही ना दोनों को रिलाई करते करते आगे जा रहा है. मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर खुद के बारे में कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, वो एक्सप्रेस करना सीख गई है. अभी उसको लेकर चलते हुए खुद में समाये हुए नहीं है या फिर भाग नहीं रहे किसी एक दूसरे से. दे आर टेलिंग दैट यू नो आई जस्ट फियर्ड अबाउट दिस, और यू नो आई जस्ट एक्सपेक्टेड दिस, हाउ कैन आई डू दिस अदरवाइज, कैन यू हेल्प मी आउट. तो दोनों इंसान के फियर को एक दूसरे के साथ आपस में निपट रही है और वही चीज़ों से, मतलब उसी को ही ग्रोथ कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं. यही चीज़ डील करते करते वो विजडम के साथ आगे बढ़ रहा है. सो ब्यूटिफुल एनर्जी. आई मस्ट से यू डिडंट फाइंड एनीथिंग लाइक दैट इन योर प्रीवियस एनी ऑफ द बुलशिट्स. ओके, इफ यू हैव डेल्ट सो. नाउ आई एम गोना टेक द फाइनल स्पिरिट मैसेजेस कार्ड. दिस इज द डेक. This is a big one to fit in my hand, so bear with me please. Spirit, give me one. Oh my god. Okay. Shit man. Be fearless. यही लिखा हुआ है इधर, अगर आपको दिखने को मिल रहा है. थोड़ा सा विंटेज है, मेरी बहुत पसंद की कार्ड है. This is the look and this is the message. Dearest you, on earth humans learned about life by telling stories and creating new ones, basically the narratives, okay, based on shared experiences. Yes, that's what I was talking about. Eventually, after repeating one after often enough, it becomes your main story that you use to define yourself and the world. So, to get the answers you seek, you must get vulnerable and hear your story when you tell it. Ask, why do you tell it? Is it really true? What else can be true? Can you see the truth that spirit is in all the things? Do you see how other stories overlap and intertwine? Spirit loves stories, for they are like blueprints for co-creation. So tell the one we know to be true about a story of courage, gratitude and honesty. Tell an empowered story
about well-being, wisdom and grace. You will experience your world according to the story you will tell about it. So make sure they are stories you are proud of. Genuinely loving fan club. Oh my god. इस मैसेज की ब्रीफिंग ये है कि स्पिरिट आपको बोल रही है कि नैरेटिव सच हो जाते, तो जैसे आप लाइफ को देख रहे हो, जिस तरीके की चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव, उस तरीके की ही को क्रिएशन होगी स्पिरिट के साथ। तो इससे अच्छा है कि आप वही स्टोरी फिर से लिखो, स्क्रिप्ट लिखो, रिस्क्रिप्ट करो, जो आप सुनना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो, जो आप साकार होने के लिए वेट कर रहे हो। ओके, सो बी fearless. Now I am moving to my last and fifth question afterwards. The last question is the offering. Okay, ritual or action to honor the supporters and clear any resistance. मतलब कौन से रिचुअल आप कर सकते हो जो आपकी ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो ब्लॉक है, जो भी है, ये सारी चीज़ को हटा सकती है, या फिर जो सपोर्टर स्पिरिट्स आपके लव मैरिज के लिए काम कर रहे हैं या फिर ब्लेस कर रहे हैं, उसको ऑनर कर सकते हैं। ओके, फॉर दैट वंस अगेन आई एम गोइंग टू यूज द ब्लॉक वर्स ब्लॉकिंग यू डेक एज वेल एज दैट प्रैक्टिकल विच इज स्पेल डेक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इससे देख लेती हूँ रिचुअल कौन सा कर सकते हो आप। चलिए मैं शाफल करती हूँ। दिस इज 100 कार्ड्स डेक। सो द रिचुअल दैट यू कैन प्रेफरेबली प्रैक्टिस फॉर योर टू ऑनर द सपोर्टिव स्पिरिट। ओके, ये रिचुअल थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि होना संभव पर नहीं, क्योंकि ऐसा चीज़ मेंशन किया गया है, तो उसको मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हो। नाउ दिस इज अ ऑल्टर स्पेल्स एक्चुअली। नाउ सनराइज स्पेल, वेरी सिंपल। Float a rose in a clear bowl. Oh my god, it's very simple. It's very simple. Float a rose in a clear bowl of water and light a pink candle beside the bowl. Oh great. With your left hand. Okay. Because I guess this is the hand for woman mostly. Gently stir the water in the bowl and say this mantra. These waters cleanse my soul and being. Now with a clear mind and heart I am seeing. I am love. My heart is as big as sky and earth. From the east to the west, love universal gives life its worth. Blessings to all. So mote it be. Keep the blessing bowl on your kitchen altar for 3 days and 3 nights. It's quite doable, man. You can do it. देखिए, ये सारी चीज़ ना आपकी मैनिफेस्टेशन को, इंटेंशन को सेट करता है। इनमें से और कुछ नहीं है, ये एनर्जी है। अगर विश्वास के साथ कर सकते हो तो करो। ओके, दिस इज द रिचुअल यू कैन ऑनर द लव स्पिरिट. Actually, the rose is a love thing. Okay, rose quartz, rose, or any other thing is related to love, and your supportive spirit is love itself. So you can honor this in this way. Okay, take a quiet time in bath. Okay, spend your time with your own body, own mind, own soul. Now अभी हम ये देख लेंगे ये कार्ड से फिर से कि ये जो स्पेल है ये आपको कौन सी ब्लॉक या कौन सी रेजिस्टेंस को हटाने में, रिमूव करने में मदद करेगी. ओके, विच रेजिस्टेंट कैन बी रिमूव बाय दिस स्पेल और बाय दिस पर्टिकुलर रिचुअल स्पिरिट, and this could even support you or protect you from any kind of enemy or opposing forces. Okay, whosoever it is, whatever it is. Okay, 2 cards are there. Love. Oh my god, चारों तरफ लव ही लव है. Love is the answer. Love won't solve your problems. You need to work on being independent. Okay, can you just recall? There was the Queen of Pentacles energy from the Chimera Tarot. That means अगर आप लव सोचते हो कि लव अगर नहीं मिला तो लव ही आंसर है, लव ही फिर से सीख करना पड़ेगा. एनी हाउ आई हैव टू फाइंड लव, लव छोड़ के मैं जी नहीं सकती. तो आपको ये कहना चाहते हैं स्पिरिट कि यही ब्लॉक है. यू आर द लव. बी इंडिपेंडेंट टू थिंक, टू फील दैट नथिंग, नोबडी यू एक्चुअली रिक्वायर.
The way people will see you is just like the embodiment you are. You are the embodiment replica of love. So be that badass energy. This is Queen of Pentacles, man. This is basically a Queen of Pentacles along with a blend of a King of Swords. This is how you are. Even you can feel a Queen of Swords. And now, unworthy. Yes. So that's the main reason you seek for it. Without healing, mostly. You deserve an amazing relationship. Take steps to heal doubts about yourself. अगर आप doubtful हो, you are not worthy. Man, I am telling you, you are here. You are seeing the reading for that reason. I'm seeing on my screen 444. So you can claim that message. You can claim that reading with 444. This is the energy I share, because you can see my name here, Wisdom Lantern Tarot 444. So I even feel a beach vibe. This person could relate to some kind of beach environment, obviously where some kind of healing power is there, serene nature, quiet moment which you are not into. Okay, thank you so much for joining me in today's reading. I'll be कमिंग अप वंस अगेन इन लाइव, पर लाइव के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बिकॉज आई एम लिटरली इनटू सम अदर काइंड ऑफ अरेंजमेंट एंड अदर थिंग्स. सो वो सेटल डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. उन तक के लिए आप थोड़ा सा वीडियो को ही देख लीजिए, उनमें से आपको बहुत सारे मैसेज मिल जाएगी. मैं शायद पॉल करने की कोशिश करूँगी, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सी टॉपिक में आप चाहते हो. ओके, थैंक यू सो मच. दिस इज मधुरा. आई एम जस्ट टेकिंग अ गुड बाय फ्रॉम यू, एंड इफ यू विश टू परचेज अ वेरी अफोर्डेबल love reading, career reading, or any kind of reading personally, you can just message me in madhurawisdom@gmail.com. Till then, stay tuned, stay blessed, stay safe, and trust in the love. Thank you.